اس حدیث کے اندر اسلام کی بات بتائی جاتی ہے کہ ایک اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے دین کے نظریے سے تو وہ ان کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد اولاد کی طرف سے سب سے بہتر تحفہ، سب سے افضل تحفہ مغفرت کی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا ومصلیا اما بعد۔ ان مالک بن ربیعۃ السعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال بینا نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل من بني سلمہ فقال یا رسول اللہ هل بقي من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة علیہما والاستغفار لهما والانفاذ احدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما واکرام صدیقہما۔ رواہ ابو داود فی کتاب الادب۔ حضرات مصلیان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں عنوان درس کل کی طرح ہی ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس حدیث کے اندر آج انشاءاللہ ایک نئی بات معلوم ہونے والی ہے، پہلے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ درس کے درمیان یہ بات ذہن سے نکل نہ جائے۔ عام طور پر ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ہم کتنے دن تک حسن سلوک کر سکتے ہیں، کتنے دن تک ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ تو ایک اچھی اولاد کا جواب یہی ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کتنے دن؟ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مر گئے تو مرنے کے بعد کیسا کیا حسن سلوک کر سکتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسا کیا کر سکتے؟ ایک عام سا سوال ایسا ہو سکتا ہے، اس کا جواب ایسا آ سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر اسلام کی بات بتائی جاتی ہے کہ ایک اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے دین کے نظریے سے تو وہ ان کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن ربیعہ السعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسی نیکی بھی ہے کہ میں میرے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم تمہارے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہو ان کے مرنے کے بعد بھی، تو ہاں ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ تو کہتے ہیں کہ بتائیے کہ وہ کیا نیکی ہے کہ میرے ماں باپ مر جائیں پھر بھی میں ان کے ساتھ وہ نیکی کر سکوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان دونوں پر دعائے خیر کرنا اور دعائے جزا کرنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے ہمیشہ گناہوں سے بخشش کی دعا کرنا، وانفاذ احدہما من بعدہما، اور اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ عہد و پیمان کیا تھا، کچھ پورا ہو گیا کچھ باقی ہے، تو ان کے باقی جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے رشتہ داری کو قائم کرنا، واکرام صدیقہما، اور ان دونوں کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے کتاب الادب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ سب سے پہلی میں بات اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے بتاؤں کہ یہ جو باتیں اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں وہ ادب سے تعلق رکھنے والی ہیں، یعنی جو انسان ادب والا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کو ادب پسند نہ ہو تو وہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا، اور پورا کا پورا اسلام ادب پر منحصر ہے، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کے سلسلے کو جاری رکھا ہے۔
क्या क्या करना है? सबसे पहले तो उनके लिए दुआ करना है, दुआए खैर, दुआए जज़ा और मर्तबे के बढ़ने की भी दुआ। हम सब जानते हैं, ये हदीस मशहूर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक इंसान कब्र में सोया है, अपने अमल का जितना भी उसको अच्छाई मिलना था मिल गई है, उसके बाद फिर भी उसका दर्जा बुलंद होता है। वह आदमी पूछता है, परवरदिगार मेरा तो कोटा ख़त्म हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरी पोजीशन रोज़ रोज़ बढ़ रही है। मतलब इम्प्रूवमेंट किस हिसाब से आता है? अभी कुछ बैकअप है तभी तो आता है ना। मेरा किया हुआ सब मेरे सामने है, उसका बदला भी मेरे सामने है, लेकिन क्या बात है कि मेरा मर्तबा फिर भी बढ़ रहा है। तो अल्लाह फरमाता है, तेरा किया हुआ तुझे मिल गया, मर्तबा तेरे औलाद की दुआ की वजह से मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला, सबसे पहले नेकी माँ बाप के मरने के बाद उनके लिए ये है कि आदमी उनके लिए दुआ करे। सुबहान अल्लाह। दूसरी नेकी क्या है? दूसरी नेकी में कुछ मैं इंशाअल्लाह तवील गुफ्तगू करूँगा दरस ही के टाइम के अंदर, ज़्यादा लंबा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल इस्तिगफारु लहुमा, और माँ बाप के मरने के बाद उनके साथ नेकी करने का मतलब ये है उनके लिए इस्तिगफार की दुआ करना। हर इंसान गुनहगार होता है, अच्छा हो बुरा इंसान तो हमेशा सुबह से शाम और शाम से सुबह तक गुनाहों में लुत्फ़ ही होता है, लेकिन अच्छे इंसान से भी गुनाह हो सकते हैं। शैतान बहकाता है, कभी कभार ऐसा होता है इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांग के इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन कुछ बदनसीब इंसान ऐसे भी होते हैं गुनाहों का बोझ लेकर चले जाते हैं। अब क्या करें, हैं तौहीद परस्त लेकिन गुनाहों का बोझ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये गुनाहों का बोझ अगर इंसान लेकर जाता है, रब की मेहरबानी ये है कि सबसे पहले उसके गुनाहों में से कुछ गुनाह उसके नमाज जनाजा में धुल दिए जाते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जो उसकी औलाद मगफिरत की दुआ क़यामत तक करती रहती है, उसके ज़रिए से उसके गुनाह धुलते रहते हैं, और उसके नामा अमाल या उसकी जो रजिस्टर में कल क़यामत के दिन हिसाब होने वाला है ना, उस रजिस्टर से उसकी गंदगियाँ, उसके गुनाह मुआफ़ होते रहते हैं। अहले इल्म कहते हैं, दुआ तो है ही, दुआ तो हर एक के लिए, दुआ मोमिन का हथियार है उसकी ज़िंदगी में, उसके मरने के बाद भी। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप के लिए उनके मरने के बाद औलाद की तरफ से सबसे बेहतर तोहफ़ा, सबसे अफजल तोहफ़ा मगफिरत की दुआ है। आमतौर पर हम कहते हैं ना, भाई हमारे बाबा का इंतकाल हो गया, हमारे चाचा का इंतकाल हो गया, माँ गुजर गई, दादी गुजर गई, ईसाल सवाब के नाम पर हम कुछ करना चाहते हैं। ईसाल का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग। ईसाल या वसाला यसूल से है, इसका माना है ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हम एक चीज़ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचाए, जहां का एड्रेस हमने दिया है वहां वो चीज़ पहुंचेगी, इसे क्या कहते हैं? ईसाल कहते हैं। और सवाब वो प्रोडक्ट है हमारा। तो ईसाल सवाब का मतलब क्या? हम एक चीज़ ईसाल सवाब के तौर पर काम वहाँ पहुँचाएँ, अब अल्लाह तबारक व तआला उन तक पहुँचाएगा। इस सिलसिले में बहुत से लोग गलत काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मस्जिद को फ़ैन दिलाए, मदरसे को कुछ खाना खिलाए, या यतीम बच्चों को खाना खिलाए, कपड़े पहनाए, ईसाल सवाब के नाम पर। अब 3 दिन के नाम पर भी करते हैं, 9 दिन के नाम पर भी करते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। ईसाल सवाब के नाम पर जो कुछ किया जाता है, यहाँ लाइन भी है, मैं आपके सामने पढ़कर सुना भी सकता हूँ कि वो सब का सब बातिल है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सवाब पहुंचाना है ना, तो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ किया है उसी का सवाब उनको मिलता है, उसी का बदला उनको मिलता है। हाँ, अब अगर गुनाह से मुआफ़ी मांगनी है उनके मरने के बाद, तो सिर्फ़ और सिर्फ ईसाल सवाब के तौर पर इस्तिग़फ़ार की दुआ कर सकते हैं, सिर्फ इस्तिग़फ़ार की दुआ। अब देखिए ना, हम माशाअल्लाह अगर गैर मसलक के लोग कर रहे हैं तो अलग बात है, हमारे मसलक के भी लोग ईसाल सवाब के नाम पर खाना खिलाते हैं। पहले उसका नाम अलग होता था शायद, वो 3 दिन की ज़ियारत, 9 दिन की ज़ियारत। अब जब किताब और सुन्नत की तालीम आम होने लगी, लोगों को पता चलने लगा, अरे ये नहीं करना है, काम नहीं छोड़े, नाम बदल दिए। काम छोड़ना चाहिए था, नाम बदल, ईसाल सवाब। पता नहीं ईसाल सवाब, अच्छा किसी बुरी चीज़ का नाम बदल दिए, अच्छा थोड़ी ना होती वो चीज़, बुरी चीज़ बुरी ही है, नाम बदलो या चाहे उसका लेबल बदलो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा ईसाल सवाब करना है ना, इस्तिग़फ़ार की दुआ सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है माँ बाप के लिए, सबसे बेहतरीन। आप अंदाज़ा लगाइए किसके माँ बाप गुनहगार नहीं हो सकते। हम खुद भी हैं, हर कोई है, इसीलिए हम नबी को भी इल्मी तौर पर, नबी को भी मासूम अनिल ख़ता नहीं मानते हैं। अगर हम रोज़ाना हमारे माँ बाप के बारे में इस्तिग़फ़ार की दुआ करते रहेंगे, सोचिए ज़रा कि अगर इस्तिग़फ़ार की दुआ करते रहेंगे रोज़, अल्लाह वो मर गए लेकिन एक एक गुनाह माफ़ हो रहा है हमारी इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त की दुआ की वजह से, तो इससे बढ़कर तोहफ़ा क्या हो सकता है? वो खाना जो हम खिला रहे हैं उसका सवाब पहुंचा सकते हैं?
जो काम इस्तिग़फ़ार की दुआ कर रही है वो चीज़ दूसरा कोई अमल कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। तो इस्तिग़फ़ार ही है असल ईसाले सवाब। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीसरी नेकी अगर तुम तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद करना चाहते हो, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कई अहद व पैमान किए होंगे। बाज़ वालिदैन जो है ना अपने बलबूते पर भी अहद व पैमान करते हैं, मैं वहाँ ये करूँगा, मैं वहाँ ये करूँगा। और बाज़ वालिदैन अपनी अच्छी औलाद के ऊपर भरोसा करके अहद व पैमान करते हैं। मतलब खर्चे पानी की बात कर रहा हूँ मैं कि मेरी औलाद मेरा साथ देगी, मैं फ़लाँ ये करने वाला हूँ, बहुत बड़ा अल्लाह का काम करने वाला हूँ, वहाँ दीन का काम करने वाला हूँ। अपने पास कुछ नहीं होता उनके पास, मतलब औलाद पर भरोसा करके करते हैं। अब गुजर गए तो ये अहद रुक गया ना, उनका बाकी रहेगा, पेंडिंग हो गया। अब क्या करना है? उनकी ज़िंदगी में उनके रहे हुए अहद व पैमान को औलाद पूरी करे, ये उनके साथ उसने सुलूक है। चौथी नेकी अगर वालिदैन के मरने के बाद भी इंसान करना चाहता है, उनके रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। इस सिलसिले में बात गुजर चुकी है। और पांचवी नेकी उनके गुजरने के बाद ये है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ कायम रखा था, तुम उनके मरने के बाद उनके दोस्तों के साथ ताल्लुक़ कायम रखो। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि जब हम हमारे माँ बाप के दोस्त के पास जाते हैं ना, बहुत से फ़ायदे, कल मैं शायद 3-4 फ़ायदे गिनाया हूँ। एक फ़ायदा देखिए क्या है सबसे बड़ा और अच्छा फ़ायदा, बाप के या माँ के रिश्ते, हम दोस्त के पास जाएंगे ना तो सबसे पहले तो हमारे बाप को याद करेगा या माँ को याद करे, उनको भी दुआएं देगा, हमको भी दुआएं देगा। क्यों? सच्चे दिल से। कौन आज दोस्त अहबाब को याद रखता? अपने दोस्त अहबाब को ज़रा पोजीशन है तो याद नहीं आता, वो भी माँ बाप के, वो भी उनके मरने के बाद, तो दिल से दुआ नहीं निकलेगी। ऐसे दोस्त के सबसे बड़ा फ़ायदा। क्यों? मोमिन के लिए दुआ बहुत अच्छा तोहफ़ा। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला ऐसी अहम प्यारी अहादीस में जितने भी मसाइल और नसीहत की बातें हैं, अल्लाह उन नसीहत की बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप की ज़िंदगी में माँ बाप के मरने के बाद उनके रिश्तेदारों और उनके दोस्तों अहबाब के साथ हमेशा ताल्लुक़ जोड़े रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।